Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 19 December 2020 and I am teaching you chapter number 21 and the name of the chapter is The Story of a Fire. Story of a fire. Name of the chapter is The Story of a Fire. So student, let's discuss what we have done in our previous video. So student, in the previous video we are discussing how with the discovery of a fire has become the greatest achievement for mankind. Okay, and firstly, when by accidentally fire catch in the forest, then the early man observed that all the animals are afraid of fire and they are running away from the forest. So now from this the early man realized that fire is very good now the early man came to know that this fire is a very good thing, and because he observed that all the animals are afraid of the fire, because early man is also living in the forest like animals, and he also observed that there are very dangerous animals are also in the forest which kill the other animals and eat their flesh. Even early man are also afraid of these animals, but when he observed that all the animals are afraid of fire and they are running away from the forest, then the early man realized that this fire can protect them. This fire can protect them from these dangerous animals who eat flesh. But student, at that time the early man don't know how to produce the fire, क्योंकि देखो कभी कभी होता है जंगल्स में भी अपने आप भी आग लग जाती है, ठीक है। सो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये तो नहीं पता था कि हाउ टू प्रोड्यूस द फायर, बट उसे ये पता चल गया था कि दिस फायर इज वेरी यूजफुल फॉर देम. He don't know how to produce it, but they realize that this fire is very useful for them. Okay, so
even early man, they killed or they hunted the animals and they also eat their flesh. So maybe, and how they kill the animals at that time? So at that time maybe they kill the animals with the stones. So what they do, they make the stone sharp. So with the sharp stones they can easily kill the animals. So maybe sometime it happens when he is sharpening the stone, जब वो stones को आपस में रब करके शार्प कर रहा हो, मे भी ऐसा हुआ हो ओल्ड टाइम में. किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हम एक ऐसा इमेजिन करते हैं कि मे बी ऐसा हुआ हो व्हेन ही इज शार्पिंग द टू स्टोन्स. सो उनको रब करने में उन स्टोन में से स्पार्क निकली हो, and maybe that spark fall on the dry leaves and dry leaves catches fire. So in this manner maybe the early man come to know that how they will produce the fire. Okay, so with the discovery of the fire help man in many ways. अब जब फायर की डिस्कवरी हो गई तो दिस डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प्स द मैन इन मैनी वेज. फर्स्ट, फायर केप्ट हिम वार्म इन कोल्ड क्लाइमेट. ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर with the discovery of fire, this fire kept him warm in the cold climate. Even fire helped too, because I already explained you that the early human beings, where they live, the early human beings live in the cave. So have you observed that, student, when you burn the candle, if there is no electricity और आप कैंडल बर्न करते हो तो आपको देखते हो ना कि ड्यू टू द लाइट ऑफ द कैंडल ऑल द थिंग्स आर विजिबल. तो जब फायर जलती है, आग जलती है, तो उससे हीट तो बेटा प्रोड्यूस होती ही है, इसके साथ साथ उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमें थिंग्स क्या विजिबल होने लगती हैं. और अर्ली मैन ने ये भी देखा था कि ऑल द एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द फायर. सो अब वो केव्स में लाइट के लिए भी इसे यूज करता था, और इवन दिस फायर प्रोटेक्ट द अर्ली मैन फ्रॉम द डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मीन जंगली जानवर. ठीक है, जिन जानवरों को हम अपने साथ रखते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, पालतू होते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट में होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, सो इवन दे यूज विद द हेल्प ऑफ दिस फायर दे लाइट अप देयर केव्स आल्सो. उनके केव्स में भी रोशनी रहती थी. एंड एट द सेम टाइम, एज यू नो, animals are afraid of fire and they run away from the fire when they see fire. So this fire keep them warm in the winter, and they also light up their caves with this fire, and even they get protection also from this fire, from the dangerous wild animals of the forest. And even I explain you, in a forest fire many of the animals also burn, and when he eat the roasted flesh,
of that animal, then that is soft. क्योंकि बेटा जब हम लोग फायर में कुक करते हैं खाने को तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इट बिकम सॉफ्ट. एंड अनदर थिंग इज दैट द टेस्ट ऑफ द फूड इज आल्सो इंक्रीज. सॉफ्ट तो हो ही जाता है, इसके साथ साथ बेटा फूड का टेस्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो विद द डिस्कवरी ऑफ ए फायर, अर्ली मैन लर्न टू कुक हिज फूड बिफोर ईटिंग. अब वो क्या हुआ, अब वो डायरेक्टली जैसे स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग they are doing eating the food just like animals, whether it is a plant product or whether it is a flesh of the animals. But when with the discovery of fire, lot of change come in the life of early human beings. Now they start cooking the food, ठीक है, बिफोर ईटिंग. अब वो लोग क्या करने लगे, फूड को भी कुक करने लगे. नाउ after that man realized that, early man realized that this fire is very dangerous. Everyone is afraid of this fire, so they start worshipping also, worship also, ठीक है. तो आग की भी फिर अर्ली जो मैंस थे वो आग की भी पूजा करने लगे, so that their life is same from the, so that their life is safe from the fire. And with the passage of time the way of producing fire also change. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया the way of producing fire also change. okay, so now देखो आज क्या है, फायर प्रोड्यूस करनी है, मैच स्टिक से भी आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो. नेचुरल गैस है, द गैस विच इज यूज्ड बाय अ मदर इन द किचन फॉर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर यू, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये क्या है, गैस है जो क्या होती है, बर्न होती है. इज इट क्लियर? सो मैच स्टिक से भी आप फायर लगा सकते हो. आजकल आप किचन में देखते होगे आपकी मम्मी लोग क्या यूज करती हैं, आपकी मम्मी लोग लाइटर होता है बेटा, जिसमें क्या एक स्टोन सा लगा रहता है, जब वो रब करता है तो एक स्पार्क सी निकलती है. एंड व्हेन यू ऑन द नॉब ऑफ द गैस, वो जो गैस है वो बर्न होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लेम. ठीक है. सो आज के डेट में तो देखो बहुत से मेथड है, कोल है जिसे कोयला बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस है, केरोसिन ऑयल है. सो यू कैन यूज दिस, और बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है. और टुडे वी मेक इलेक्ट्रिसिटी विद इट. गोबर गैस इज आल्सो यूज फॉर लाइटनिंग फायर, ठीक है. और देखो नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ फायर. Uses of fire. What are the uses of the fire? See student, today beside cooking man uses fire for melting iron. ठीक है. अब देखो what are the uses of fire beside cooking. Beside cooking means early man start using fire to cook the food which they grow in the fields. क्योंकि अब उनको कल्टीवेशन करना भी आ गया था. they know how to do the cultivation. सो और उनकी लाइफ अब क्या हो गई थी, सेटल हो गए थे वो एक जगह पे. बिकॉज इन द बिगिनिंग अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. बट व्हेन दे लर्न हाउ टू डू द कल्टीवेशन मीन्स फार्मिंग, हाउ दे ग्रो द क्रॉप्स, एंड आफ्टर दैट देयर लाइफ settle also. Now instead of roaming from one place to another,
they settle on one place because now they know that how to grow the crops. ठीक है, अब जो क्रॉप्स ग्रो करने के बाद जो ग्रेन्स उनको मिले, जो अनाज मिला क्रॉप से, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली ईटिंग दैट ग्रेन्स, व्हाट दे डू इन अर्लियर टाइम, नाउ दे आर कुकिंग देम विद द हेल्प ऑफ द फायर. अब वो उसे कुक करके खाने लगे. ठीक है, सो ये डिफरेंस आया. अब देखो, टुडे बिसाइड कुकिंग गैस की व्हाट आर द यूजेस ऑफ फायर. बिसाइड कुकिंग वी यूज फायर टू कुक द फूड. ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कुकिंग. तो चलो ठीक है, फूड को कुक करते हैं हम लोग बिफोर ईटिंग, बट व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ द फायर इन आवर लाइफ. फायर की अदर यूजेस क्या है हमारी लाइफ में. सो मैन यूज फायर फॉर मेल्टिंग आयरन, ठीक है, इट्स अ मेटल. आयरन को मेल्ट करने के लिए देखो बेटा, हर चीज का जैसे वाटर है. ठीक है, वाटर को जब आप हीट करते हो, गैस पे रखते ही वो हीट नहीं हो जाता है. वाटर का हीटिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री है. सो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके बाद आप फर्दर हीट करते रहोगे तो इट स्टार्ट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर. ठीक है, वो किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है. ठीक है, सो इन द सेम मैनर एवरीथिंग हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. अब देखो, फायर है, मैन यूज फायर फॉर मेल्टिंग आयरन. आयरन इज अ मेटल, और उससे मेटल को अगर गलाना है, उसको डिफरेंट शेप्स देनी है, सो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ ए फायर. क्योंकि फायर जब जलती है तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तभी जब भी फायर आग लगती है तो कोई भी चीज होती है, आप लोग देखते होंगे, तो वो चीजें सब क्या जल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं ड्यू टू द हीट ऑफ द फायर. For melting iron to bake bricks. अच्छा, अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जब ह्यूमन बींग्स को कल्टीवेशन करने आ गई तो उसके पास बहुत ज्यादा, he has a large quantity of grains. तो जब इतने ज्यादा ग्रेन्स अनाज हो गए तो प्रॉब्लम अराइज हुई थी ना ह्यूमन बींग को. नाउ ही नीड कंटेनर्स. अब उसे क्या चाहिए थे, कंटेनर जिसमें वो अपने अनाज को रख सके. तो यहां से किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील से, विद द पॉटर व्हील से वो बड़े बड़े पॉट्स बनाने लगा, मिट्टी के बर्तन. क्या बनाने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा. एंड इन द बिगिनिंग व्हेन दे मेक द पॉट्स, दैट पॉट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो हो सकता है बाई चांस कभी उसने, क्योंकि सारी चीजें वो ऑब्जर्व करके या कुछ भी गलत करते थे और उसी में कुछ ना कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी हो जाती थी, क्योंकि देयर इज नो बुक कि वो उसमें पढ़ लेता और उसे समझ में आ जाता. मे बी वो पॉट्स ब्रेक हो जाते थे, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो उन्हें क्या करता था, सन की हीट से वो सुखाते थे मे बी. लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने पॉट्स को बनाया होगा व्हील पे और उसको बर्न कर दिया, किससे, फायर से. एंड अ न्यू थिंग विच दे ऑब्जर्व दैट व्हेन द पॉट्स आर बर्न इन द फायर देन दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. इज इट क्लियर, देन दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ओल्ड टाइम में. ठीक है,
सो इन द सेम मैनर टू बेक ब्रिक्स, पहले क्या थे, लोग कैसे घर बनाते थे, मड के, मिट्टी वाले, जिसको आप लोग कच्चा हाउस भी बोलते हो। एंड कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड, जिसको क्ले आप बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉ है, जो फॉरेस्ट में बड़ी बड़ी घास जो होती है उसको वो लोग किस पे यूज कर लेते हैं, रूफ बनाने के लिए, छत बनाने के लिए। सो दीज आर द मटीरियल्स विच आर यूज टू मेक द कच्चा हाउस, वुड, स्ट्रॉ, mud. So these are the materials which are used to make the kacha house. So in the beginning the human beings, which type of a houses, in the beginning they build kacha houses, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो थे, अर्ली मैन जो थे, वो टोटली अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड थे, जो थिंग्स नेचर में प्रेजेंट है। आज भी यही है, वी आर टोटली डिपेंड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। इज आवर लाइफ इज पॉसिबल विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज? देन द आंसर इज नो, आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो, स्टार्टिंग के सारे घर क्या थे, कच्चा हाउसेस थे। तो अब जो ब्रिक्स, जिसको आप हिंदी में ईंटा बोलते हो, ये भी क्या है, ये भी मड ही है। जैसे अर्ली टाइम में उसने स्टार्टिंग में जब पॉट्स बनाए, मिट्टी के जब बर्तन बनाने स्टार्ट किए, तो डैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मे बी उसने कभी ऐसा किया होगा, कोई बर्न दैट पॉट्स इनटू द फायर एंड देन दे बिकम वेरी हार्ड। सो आज की डेट में जो बेटा आप लोग पक्के हाउसेस देखते हो ना, द हाउसेस विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से जो बनते हैं, तो फ्रॉम वेयर वी गेट दिस ब्रिक्स, दिस ब्रिक इज आल्सो अ मड। ये ब्रिक्स जो है बेटा, ये भी आपकी क्या है, ये भी मड ही है, ठीक है। इसको ब्रिक की शेप दी जाती है, ऐसे डिजाइन्स होते हैं, ठीक है, इसको ब्रिक की शेप्स दी जाती है और आफ्टर दैट इसको बेक करते हैं, ठीक है। देन इट बिकम वेरी हार्ड, और जिससे हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। ईंटें बनाने की बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, ठीक है, ब्रिक्स बनाने की। पहली कच्ची ईंटा होती है जो आपके मड की बनती है, और इन बड़ी बड़ी भट्टियों में इन्हें एक टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्न करना है, ठीक है, इन्हें एक टेम्परेचर पे बेक कराया जाता है। फिर दे आर चेंज, वो जो आपकी मड हो जाती है वो हार्ड हो जाती है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो जो पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बने होते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सो दिस जो इतने स्ट्रांग बने, जो ब्रिक्स बनी, दिस इज आल्सो ड्यू टू द फायर, क्योंकि जो कच्ची ईंटें होती हैं, जो मड होती है, उसको बड़ी बड़ी भट्टियों में एक राइट टेम्परेचर पे बेक कराया जाता है, गर्म करते हैं, और फिर उसके बाद वही जो मड होती है वो बिल्कुल स्ट्रांग बन जाती है, वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। एंड दिस ब्रिक इज यूज्ड टू मेक द पक्का हाउसेस। अदर मटेरियल भी हैं, पक्का हाउस में सैंड यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, बट ब्रिक्स के बारे में डिस्कस हो रही है। वेयर द ब्रिक्स आर यूज टू मेक द पक्का हाउसेस। So these bricks are also made with the help of the fire. So these bricks are also made with the help of the fire. Now to bake bricks हो गया, to produce energy, ठीक है, energy is produce, to produce energy। जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना।
जैसे कोयला है, आपने सुना होगा, जब मैंने इससे पहले आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो द फर्स्ट इंजन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजन: स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन. डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन दे आर इन वर्किंग कंडीशन, लेकिन स्टीम इंजन सब बहुत बंद हो गए. क्यों? लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज ड्यू टू दैट. सो स्टीम इंजन क्या है? स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती थी? वाटर बॉयलर्स होते थे, ठीक है. सो हम लोग कोयला जो है उसको बर्न करते थे, तो उसके बर्न से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, उससे जो वाटर को हम लोग वार्म करते थे, बॉयल करते थे, उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी, सो विद दैट द स्टीम इंजन मूव्स. सो आप क्या कर रहे हो? यूजेस ऑफ फायर में, फायर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. देखो, जैसे अब नेचुरल गैस है या एलपीजी की जो बात की, अब एलपीजी गैस जब फायर से उसे बर्न करते हैं, सो उसमें से जो हीट निकलती है उसी से तो पूरा कुकिंग होती है, खाना वैसे ही नहीं बनता है बेटा, ठीक है. सो फायर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है. एनर्जी को प्रोड्यूस करने में फायर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. अनदर इज मैन हैज स्टार्टेड रनिंग मशीन्स एंड इंजिन्स बाय एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फायर, ठीक है. जो फायर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, अब उससे देखो स्लोली मशीन्स, टाइम चेंज होता गया. अब टाइम क्या चेंज होता गया, अब लोग मशीन्स यूज करना स्टार्ट किए. जैसे आप सोच रहे होगे कि फायर, जब पेट्रोल है, डीजल है, गाड़ी में जब डलता है वो, तो वो बर्न होता है, ठीक है. फ्यूल जो होता है, जैसे पेट्रोल डालते हो व्हीकल्स में, डीजल डालते हो, तो वो फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है. और जब वो फ्यूल बर्न होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे आपकी व्हीकल क्या करती है? मूव करती है. इज इट क्लियर? जैसे ओल्ड टाइम में लोग कोयले पे भी खाना बनाते थे, तो जब उसमें फायर लगाते थे तो जो कोल था वो बर्न होता था, उससे जो एनर्जी रिलीज होती थी, उससे हम क्या करते थे? कुकिंग करते थे. वी कुक द फूड. इज इट क्लियर? तो अब क्या हुआ? मैन हैज स्टार्टेड रनिंग मशीन्स. मैन हैज स्टार्टेड रनिंग मशीन्स एंड इंजन्स बाई एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फायर. नेक्स्ट है, दिस फायर हैज बिकम द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर मैनकाइंड. अंडरलाइन दिस लाइन. इस लाइन को आप लोग बेटा अंडरलाइन कर लो. दिस fire has become the greatest achievement for mankind. See in the picture also how the fire is produced from these things. It is shown in the picture. This is a matchstick. This is blue color oil, and so it is kerosene oil. अब तो केरोसिन ऑयल बहुत कम यूज होता है. पहले, अब तो जो कुकिंग हो रही है दैट इज ऑन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे हो रही है. लेकिन जब हम लोग ओल्ड टाइम, बहुत बिगनिंग की बात करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स ने कुकिंग स्टार्ट की थी पहले वुड पे. देन आफ्टर दैट दे स्टार्ट बर्निंग कोल एंड काउ डंग, ठीक है. सो उसको बर्न करके भी कुकिंग करते थे, ठीक है. नाउ एंड एट दैट टाइम, देखो पुराने समय में क्या होते थे? चूल्हे हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें वुड या कोल, काउ डंग यूज करते थे. और केरोसिन ऑयल होता था. इट इज आल्सो यूज फॉर द बर्निंग पर्पस, ठीक है. लेकिन आज कोल पे कहीं भी जल्दी आप खाना बनाते नहीं देखोगे. लेकिन जब हम लोग कहीं पार्टीज वार्टीज में जाते हैं, आप लोग देखोगे ऐसी प्लेसेस पे देखोगे अभी भी लोग पार्टीज कर रहे हैं, तो वुड पे भी दे कुक द फूड एंड दिस फूड इज वेरी टेस्टी. इज इट क्लियर? सो लेकिन अब तो ओकेजनली वैसा होता है ना. इन ओल्ड टाइम मैक्सिमम ऑल द पीपल्स, हाउ दे कुक द फूड? दे कुक द फूड
with the wood, coal and kerosene oil also used at that time, and cow dung. So it is already shown in the picture. See, from this matchstick, kerosene, this is a kerosene oil, this is coal, and this is gas cylinder, and inside this, which is the gas which we burn for to cook the food, that is LPG, liquefied petroleum gas. Okay, thank you student.